Hello, my dear students of class 10th. Today we'll be starting this new physics topic, that is magnetic effects of electric current. But before we start, I guess there are certain things that you already know about magnetism. We have been learning this all since our lower classes, like in 7th, 8th, or maybe or earlier, like in 3rd, 4th class. The term magnet has been introduced. In your day-to-day life, you have been using magnets here and there, and as far as technological advances, magnets and the magnetism phenomena has been used tremendously. But let's start from the scratch. बिल्कुल beginning से शुरू करते हैं इसे, and let's try to find out what exactly magnetism is. So let's start with a brief history of magnetism. The term magnet or magnetic, it came from a Turkish island, that is Magnesia, and it is situated in the west of Turkey, where the first magnetic ore, that is lodestone or magnetite, that's what we call, is found. So there you can see this is Magnesia in West Turkey, and the magnetic ore, magnetite, that was found even in the Greek societies 2000 years ago. They were using this lodestone or magnetite. Magnetite is an iron ore which is actually ferrosulfuric oxide, that is Fe3O4, it's formalized. So it was known 2000 years ago that the Greek people knew that magnesia attract iron. It's a very interesting story related to this. There was this shepherd known as Magnus, and in the ancient Greece there lived this shepherd Magnus, and one day he was looking after the sheep of his hills, in the hills, and suddenly what he found that a mysterious force was pulling the iron staff towards somewhere. और उसका जो shepherds का जो staff होता है इनका, जो इनको भेड़ों को चराने समय help करता है, ठीक है ना, उनको guide करने के लिए, तो it was some force is pulling it. Not even that, उनकी जो sandals थे उनमें जो iron के nails थे, even those were pulled out, even the iron nails in the sandals. And finally he saw that वो पास की rock से जाके जो staff था वो tracked हो गया. So somewhere in that past जो magnetism था वो इस तरह से discover हुआ. Even so many historical facts are related to it. The Chinese, मतलब 4400 BC में, they have started using this compass needle in a very strange way. There was this the bowl was there, उसमें water fill करके और lodestone रखने पर वो water के अंदर वो rotate करता था. So in that way it was used to navigate, for navigation. Compass, उन्होंने जो अपना compass उस समय बनाया था, they used to, ये जो picture आपके सामने है, it was showing that kind of compass which is used for navigation purpose at that time. But today definitely we are using compass, और जो compass आज हम काम में लेते हैं, मेरे ख्याल से आप सब aware हैं that compass needle is somewhat like this. Normally we use it, this compass needle, और ये compass needle जो है वो हमें geographic directions जो हैं वो show करती है. But we should know what exactly is compass needle. तो जितना आपको पता है मेरे ख्याल से compass needle के बारे में, a compass is an instrument which is used for navigation and orientation, that shows the directions relative to the geographical cardinal directions. आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी होगी कि direction sense पहले prevail हुआ है. जो north, south, east and west जो 4 directions हैं और उनके बीच के जो directions हैं, those direction sense prevailed in the earlier civilization. Magnetism और उनसे related phenomena ये बाद में आए, क्योंकि इससे भी पहले जो direction का sense था वो कैसे generate हुआ, I hope आपको पता होगा, by the planets, the stars, the sun, ठीक है ना, the solar system, ठीक है ना, ancient people used those solar system and related phenomena, उनसे वो उसको idea मिलाते थे. So compass needle बाद में आई है. ऐसा मैं क्यों आपको कह रहा हूँ ये भी आपको समझ में आएगा. So compass needle actually होता क्या है? Actually a compass needle is nothing, it's just a bar magnet. ये खुद अपने आप में एक मैग्नेट है, it's a bar magnet. और ये बार मैग्नेट जो है ये पाइवट के ऊपर, ठीक है ना, it's rotating freely along a pivot and it's always indicate this north and south direction. So automatically rest 2 directions are indicated if north and south directions are indicated. अब 2 चीजें यहाँ समझने की हैं. पहली चीज तो ये कि ये खुद एक मैग्नेट है
और ये मैग्नेट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है, और इस मैग्नेट को आपने फ्रीली छोड़ा हुआ है अलाइनमेंट के लिए। सो इफ अ मैग्नेट इज हेल्ड फ्रीली और वो अपने आप को किसी डायरेक्शन में अलाइन करता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट हो। तो अब हमें ये समझना है कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों पॉइंट आउट करती है। तो उसे समझने के लिए हम कंपास नीडल के जो नॉर्थ साउथ का जो फिनोमेना है कि हमेशा ये नॉर्थ साउथ फिनोमेना ही क्यों ये करती है, इसे समझने के लिए कंपास नीडल को हमें ध्यान से देखना होगा। कंपास नीडल का, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पाइवोट के ऊपर ये टिकी हुई है और ये मोस्टली इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को करती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कार्डिनल के हिसाब से हमारे नॉर्थ, हमारे साउथ, हमारे ईस्ट और वेस्ट ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरह के होते हैं। सो ये डायरेक्शन सेंस हमें बहुत पहले से है। मैग्नेटिज्म इट्स अ लेटर फिनोमेना, बट जो डायरेक्शन सेंस है वो हमारा बहुत पुराना है, जिसमें हमें पहले से पता था जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, और उन्होंने जो डिसाइड किया कि दिस पॉइंट ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर वी पॉइंट लाइक दिस, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, this is east and this is west, and this is the same geographical cardinals we apply when we use a globe on earth. So let's see how it works. So assume करते हैं कि ये हमारे पास एक assumption है, ये अर्थ कुछ ऐसी होती है, और अर्थ के अंदर जो हम इंटीरियर में जाते हैं तो आपको पता है कि अर्थ में सरफेस इज क्रस्ट, then this is mantle, and this is what we call the core of earth. And I hope all of you know that core of earth is solid and is made up of mainly two elements, that is nickel and iron. और निकल और आयरन के बारे में आपको ये पता है कि these two things are magnetic. Okay, so by using these facts हम उस क्वेश्चन का आंसर लेना चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों शो करती है। ओके, सो वी हैव थ्री थिंग्स, वन इज अर्थ, अर्थ कोर, और कोर बना हुआ है किसका, निकल और आयरन का। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फैक्ट। सो अगेन वी हैव द सेम फिनोमेना दैट इज अर्थ, लेकिन अब हम इसके एक्सटीरियर को भी पिक्चर में ले रहे हैं। सो इस एक्सटीरियर में हमें पता है कि वी हैव टू ज्योग्राफिकल पोल्स, ठीक है, और इन ज्योग्राफिकल पोल्स के बीच में दिस इज व्हाट, दिस इज द ज्योग्राफिक एक्सिस। इस ज्योग्राफिक एक्सिस में और ये दो पोल्स जो इसके एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं, वी कॉल देम ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। अब अभी अभी हमने जो देखा वो ये कि अर्थ के कोर में निकल और आयरन है। सो कैन आई अज्यूम अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अर्थ, that is with two poles, obviously a bar magnet has two poles, north and south, but here the poles, the magnet is aligned such, the magnetism is such, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस है, तो ये अर्थ का हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं है, प्लीज कोई भी इसे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से कंपेयर ना करे, रिलेट ना करे। ज्योग्राफिक मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेट जो है इट्स अ वीक फील्ड, इट्स नॉट दैट स्ट्रांग, इट्स अ वीक फील्ड, वीक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फील्ड, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट्स वेरी स्ट्रांग थिंग। एनीवेज, तो अर्थ के कोर में ये जो मैग्नेट है ये हमने मान लिया, और ये हमारे सामने अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है और ये ज्योग्राफिक एक्सिस थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक एंगल भी है, वो भी अपन देखेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस के एक्सट्रीम्स पे मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ है, विच इज जस्ट ऑपोजिट टू ज्योग्राफिक एक्सिस, दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। अब सवाल ये कि ऑपोजिट हुए कैसे, इसे समझना बहुत आसान है। हम यहां पर इस मैग्नेटिक अर्थ के इस मैग्नेटिक पोल्स जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अर्थ के पास में एक दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, या तो आप इसे स्टैंड स्टिल किसी थ्रेड से लटका दें, या जैसी हमारी कंपास नीडल है जो कि खुद एक मैग्नेट है वो ले आए, और इस मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको अच्छी तरह पता है कि लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो अगर मैं इस नीडल को यहां पर फ्री छोड़ देता हूं, तो फ्री छोड़ देने के बाद ये नीडल अपने आप को थोड़ी देर में इस तरह से अलाइन कर लेती है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि नीडल ने अगर अपने आप को इस तरह से अलाइन किया है, तो नॉर्थ पोल नीडल का तब ही इस डायरेक्शन में आएगा जब वो अपने आप को अलाइन करेगा किसके साथ, साउथ के साथ। सो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक साउथ है, और मैग्नेटिक साउथ को बताने वाली ये नीडल
ऑटोमेटिकली किसको बता रही है? ज्योग्राफिक नॉर्थ को। तो इसलिए मैग्नेटिक नीडल हमेशा ज्योग्राफिक एक्सिस के ज्योग्राफिक पोल्स को पॉइंट आउट करती है, लेकिन उस समय वो अपने आप को मैग्नेटिक एक्सिस के मैग्नेटिक पोल्स के साथ में अलाइंड किए हुए होती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही क्यों शो करती है, तो आपका जवाब यह होगा कि कंपास नीडल एक्चुअली एक मैग्नेट है जो अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ अलाइन हुई है। अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ में ये अलाइनमेंट रिवर्स है, इसलिए एक्चुअली तो ये मैग्नेटिक एक्सिस के साथ अलाइन हुई है, यानी मैग्नेटिक साउथ के सामने मैग्नेटिक नॉर्थ ने अपने आप को अलाइन किया है, जो कोइंसिडेंटली ऑटोमेटिकली ज्योग्राफिक एक्सिस को पॉइंट आउट कर रहा है। इज दिस ओके? सो ज्योग्राफिक नॉर्थ इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ alignment of two magnets. One is earth and the other is what? The magnetic needle. ये इसकी वजह से आया। तो हम अगर बहुत समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि that's why it is what? जो भी मैग्नेटिक नीडल हमने यहाँ रखी, जो भी मैग्नेटिक नीडल हम यहाँ रखते हैं, जो मैग्नेटिक नीडल हम देखते हैं कि जो अलाइनमेंट अपना आपका करती है, तो ये जो ज्योग्राफिक कार्डिनल्स के साथ में उसने अपने अलाइनमेंट किया, दैट इज व्हाट द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सिमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सिमेटली टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ, दैट इज व्हाट एक्चुअली द मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ एक्सिस। ठीक है, द ज्योग्राफिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ है अर्थ का, एंड ज्योग्राफिक साउथ दैट इज व्हाट मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन जो है वो एंगल का है। देयर इज एन एंगल सबटेंडेड बिटवीन दीज टू। दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 17 डिग्री एंड इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेप्थ। ठीक है ना, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस बिल्कुल अलाइंड नहीं है, वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल पे है, दैट्स व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ डेप्थ। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपास नीडल है क्या और कंपास नीडल किस तरह से जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है हमेशा। अब इन डेज में जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं, अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो नेचुरल मैग्नेट्स जो है उनका तो बहुत वीक अट्रैक्टिव फील्ड्स होते हैं, जैसे लोडस्टोन और मैग्नेटाइट जिन्हें हम कह रहे हैं, सो दे आर नॉट much used. So naturally occurring minerals or ores having magnetic properties are called natural magnets. Due to their irregular shapes and weak attracting power, they are not mostly used, not commonly. They are very rarely used. Okay, but what we exactly use are artificial magnets, and we use them in different shapes, like a bar magnet or a ring magnet or a disc magnet or a magnetic needle or even a horseshoe shaped magnet. They are strong magnets and they are prepared artificially. So nowadays piece of iron and many other materials of suitable shapes and size are converted into magnets by passing current through them. तो एक वायर के थ्रू इनमें करंट पास करके और फिर इस डिफरेंट तरह के स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। यहीं से हमारे चैप्टर की एक्चुअल शुरुआत होती है। We are not interested in magnetism. We are interested in the magnetism, which is because of what? Which is because of electric current. So we have to understand how this all started. This all started by a very noted physicist, Hans Christian Ørsted, who accidentally discovered that if a compass is placed near the electric current, say this is the experiment they were doing, एंड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर उन्होंने कहा कि कंपास रखा जाएगा तो इट सफर्स अ डिफ्लेक्शन। ही वाज हेंस क्रिस्टियन ओरिस्टेड, वो अपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट को करते समय एक्सीडेंटली कंपास नीडल जो पास में थी, ही नोटिस्ड कि वो नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। नाउ कोई भी पर्सन जो साइंटिफिकली इवॉल्व्ड है उसे अच्छे से पता है कि ये नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कर रही है। नाउ अगर नीडल अपने आप जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो इट्स अ मैटर ऑफ शॉक एंड सरप्राइज टू एनीवन कि वो अपने आप तो बदल नहीं सकती, डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम कोई दूसरा मैग्नेट होना चाहिए। तो वो मैग्नेट जो वहां होना चाहिए वो विजिबल था ही नहीं, उस समय उन्हें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी में कोई मैग्नेटिज्म होता है। तो वो नीडल की डिफ्लेक्शन से तो एक बार को
मुझे ऐसा लगता है, आई फील कि उन्हें बड़ा एस्टॉनिशमेंट हुआ होगा कि ये नीडल अपना पाथवे बदल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स अपना डायरेक्शन बदल रहे हो, बिकॉज इट कुड बी वेरी डेंजरस। अगर अर्थ के अंदर कोर मूव करना शुरू करे तो पूरी उथल पुथल हो सकती है, तो इट कुड बी वेरी अलार्मिंग। तो क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हुआ हो कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बंद किया हो और बंद करते ही उन्होंने देखा होगा कि नीडल का डिफ्लेक्शन चला गया, एंड देन ही अगेन स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने फिर देखा होगा कि नीडल में तो फिर डिफ्लेक्शन आ गया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया कि ये तभी हो रहा है जब एक्सपेरिमेंट में करंट का फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने उस कंपास नीडल को वहां से उठाया होगा और उठा के फिर वो उससे दूर ले गए होंगे, और जब वो एक अप्रिशिएबल डिस्टेंस पे चले गए होंगे तो उन्होंने नोटिस किया कि अब ये इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये रियलाइज कि जो कुछ हो रहा है वो उस सर्किट में करंट फ्लो करते समय नीडल को उसके पास में रखते समय हो रहा है। मतलब कुछ कुछ मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने ऐसा नोटिस किया होगा कि हम एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। तो लेट्स सी दिस एनिमेशन टू अंडरस्टैंड देयर इज दिस की। अब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो आपको अच्छे से चीजें पता हैं कि एक सर्किट के अंदर एक सोर्स, और ये सोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का, देन देयर इज दिस की, दिस एंटायर कंडक्टिंग वायर, एंड दिस इज कंपास जो हम इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हुआ क्या होगा कि जब जैसे ही करंट पास किया होगा, ठीक है ना, वी आर शोइंग दिस करंट लाइक दिस, की को क्लोज किया और ये करंट जो मूव कर रहा है, तो इस करंट के मूव करते ही आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही करंट इस नीडल के पास से निकला है, एक बार फिर से देखते हैं कि जब वो करंट नीडल के पास से निकलेगा, ये आ रहा है करंट, ये देखिए, ये जैसे ही करंट नीडल के पास से निकला है नीडल में डिफ्लेक्शन आया। ये केवल तभी पॉसिबल है ना जब नीडल के पास में कोई दूसरा मैग्नेट हो, और मैग्नेट तो है ही नहीं। तो यहां इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये करंट जो है ये ही रिस्पॉन्सिबल है इस मैग्नेटिज्म के लिए। लेट्स वॉच इट अगेन, एक बार फिर से देखते हैं कि कहानी क्या हुई है। की क्लोज, ये करंट, देखिए मैग्नेट में डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आई होप आप इस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का बेस अब समझ गए होंगे। So what happened in 1820, Hans Christian Oersted accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Through this observation, Oersted showed that electricity and magnetism were a related phenomena. And because of this, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो यूनिट है उसका नाम हमने ओरेस्टेड, उनके ऑनर में हम आज भी काम में लेते हैं। तो हमें इस चैप्टर के एक बिल्कुल बिगिनिंग वाले पार्ट की तो समझ में आ गई बात, और वो क्या बात समझ में आई कि हमें नेचुरल मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये दो अलग फिनोमेना है, और हमें मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट समझना है। ठीक है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हिस्ट्री हमने समझी, और हमने देखा कि किस तरह से हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो था वो एक बेस बना इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए। एक एनिमेशन से हमने ये कैसे होता है, ये क्या हुआ होगा एग्जैक्टली ओरेस्टेड के साथ, वो भी हमने देखा। अब हमारे सामने कुछ सवाल हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या है जो ये मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें ये भी समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी में ये इफेक्ट जो है इसे बाहर एक्सपीरियंस कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड और फिनोमेना क्या हैं और उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब हमें समझने हैं। तो आज के लेक्चर को शॉर्ट रखते हुए मैं इस इंट्रोडक्शन से ही बात को आगे बढ़ाऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप इस लेक्चर को रिपीट करके फिर से देखें, एनिमेशन को देखें, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर का जो पैटर्न है और अरेंजमेंट है और वे आपको अच्छा लग रहा है, जैसे लाइक, शेयर और दूसरे फ्रेंड्स को मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए। सो आई विल बी मीटिंग यू सून, बहुत जल्दी हम इसके पूरी डिटेल्स के साथ में और आपके साथ जुड़ेंगे और इसको आगे समझेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट आई अश्योर यू। खत्म करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बाकी दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट है। तो जो हम फैक्ट्स यहाँ पर पढ़ेंगे उन फैक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आपको लेक्चर्स के रिवाइंड करके रिपीटेशंस की जरूरत होगी,
ठीक है, तो आप उन्हें बार बार तब तक पढ़ें जब तक कि आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ जाती। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, कीप एंजॉयिंग।